गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ हमारे बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड, उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन and if limit x tends to 1 fx equals to f1, then what are the possible values of a and b? Here it is given that limit x tends to 1 fx equals to f1, means we have to x tends to 1, this limit is given. So first of all, find out whether the value of x is changing or not for x equals to 1. So यहाँ पे हम देखिए x less than to 1, x equals to 1 and x less than to 1. So यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है and limit x tends to 1 fx equals to this one equals to f1. So first of all find f1. Okay, so 28th is first of all f1 will be f1. So find the value of the function when x equals to 1. So x equals to 1 is this one and this is equals to 4. Okay, now limit x tends to 1 fx equals to f1 means 4, means you can say limit x tends to 1 fx equals to f1 and value of f1 is 4, means this is a defined value, so you can say that the limit exists. So now find out left limit, okay, and right limit. So now for left limit we have to find out f, or you can say limit x tends to 1 minus fx. Okay, that is limit h tends to 0 f 1 minus h. So equals to limit h tends to 0 f1 minus h. 1 minus h means less than 1. 1 minus h that is less than to 1 means 1 में से हमें कुछ सब्सट्रैक्ट करना है. सो जो वैल्यू होगी, जो रिजल्ट होगा वो छोटा होगा किससे, 1 से. सो x is less than to 1 in this function. यहां देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ x की वैल्यू लेस देन 1 है और हमें रिक्वायरमेंट है लेस देन 1 की. सो हम ये फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे. सो यू कैन राइट हियर a प्लस b x. ओके, नाउ पुट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0. जो x है, x की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस h. सो a प्लस b इंटू 1 माइनस h. नाउ पुट h इक्वल्स टू 0, देन यू फाइंड a, ओके, प्लस b इंटू 1 माइनस 0. सो यू कैन से a प्लस b. ओके, a प्लस b. नाउ second one, limit x tends to 1 plus fx, that is limit h tends to 0, okay, f 1 plus h, and 1 plus h means greater than 1. so greater than 1 हमारा x इस वैल्यू के लिए है, means ये वैल्यू हम यूज में लेंगे. so equals to limit h tends to 0 and b minus ax. So you can say limit h tends to 0, okay, b minus ax. So b minus a and put x की जगह में put करना 1 plus h. Now put h equals to 0, then we find b minus a into 1 plus 0. So you get b minus a. Okay. Now since limit x tends to 1 plus, okay, or fx equals to, or you can say since limit x tends to 1 fx equals to f1 equals to 4. देखिए this is given, limit x tends to 1 fx equals to f1 and value of f1 is 4. so 4 is, since 4 is defined value, so left limit, so limit means you can say limit x tends to 1 minus, okay, equals to limit x tends to 1 plus equals to 4.
जो आपकी लेफ्ट लिमिट होगी और जो आपकी राइट लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, 4 के। सो यू कैन से वैल्यू ऑफ लेफ्ट लिमिट, वैल्यू ऑफ लेफ्ट लिमिट इज दिस वन, मीन्स b minus ax and equals to b minus left limit is a plus b, left limit is a plus b, so you can say a plus b equals to right limit, and right limit is b minus a and equals to 4. So by these we get two equations. First one is a plus b equals to 4 and second one is b minus a equals to 4. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये एक बार हमने इसको 4 के इक्वल पुट किया, एक बार इसको 4 के इक्वल पुट किया। ओके, सो वी गेट टू इक्वेशंस। नाउ सोल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज ऑफ a and b. If we solve, means if we add first and second, if we add first and second, then we find b plus b, that is 2b. Solve these equations we get, देखिए अगर हम इनको सोल्व करें बाय द मेथड वी यूज्ड इन क्लास 10, सो यहां प्लस ए है, यहां माइनस ए है, सो ऐड बोथ इक्वेशंस, सो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b प्लस b 2b इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8, so 2b equals to 8, then we get b equals to 4. Now put value of b here, either in equation first or in equation second. So b की वैल्यू हम यहाँ 4 पुट करेंगे, then we get a equals to 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, then we get a equals to 0. So ये हमारा सॉल्यूशन होगा possible values of a and b. So these are the possible values of a and b. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, उसको देखिए। Question number 29, that is, let a1, a2, a3, a and b fixed real numbers. These are fixed real number and define a function fx equals to this one. So question number 29, fx, this is x minus a1, x minus a2, similarly x minus an. Okay. What is limit x tends to a1 fx? So limit x tends to a1 fx. So हम क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पुट कर देंगे a1. So यहां पुट किया, then we get a1 minus a1 and यहां पुट किया a1 minus a2 and यहां पुट किया a1 minus an. So a1 minus a1 we get 0 into a1 minus a2, then a1 minus a3. In the same way we get a1 minus an, and if we multiply 0 with any number then we get 0. So this is the solution of question number first part of question number 29. Now come to second part. If a is not equals to a1 a2 an, here a is not equals to a1 a2 an, then find, यहां हमें फाइंड आउट करना था x tends to a fx, लिमिट x tends to a fx, ये हमें फाइंड आउट करना था. सो नाउ लिमिट, दिस इज फर्स्ट, नाउ सेकेंड पार्ट, x tends to a fx. सो दिस इज पुट x tends to a. यहां हम जो fx है हमारा ये वाला, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे. सो वी गेट a minus a1, a minus a2 and a minus an. Okay, now a is not equals to a1, so ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये भी जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी. a is not equals to an, so देखिए here is given a is not equals to a1 a2 and so on an. मीन्स a और a1 इक्वल नहीं है, सो ये जीरो नहीं होगी. a एंड a2 इक्वल नहीं है, ये जीरो नहीं होगी. सिमिलरली a एंड b इक्वल नहीं है, तो ये भी जीरो नहीं होगी. सो आपका जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी दिस वन.
Next question, question number 30, that is if fx equals to this one, here x is less than to 1. अगर आपका x जो है वो less than 1 है तब आपको ये यूज में लेना है. If x equals to 0 then आपको ये यूज में लेना है. If x is greater than to 0 then आपको ये यूज में लेना है. And we know that if x is less than to 0 then mod of x is equals to minus x. Okay? क्योंकि x अगर हमारा 0 से लेस है देन देखिए सपोज मैंने -1 लिखा. ओके, मींस x इक्वल्स टू -1, देन मोड ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 1. ओके, एंड दिस 1 इज इक्वल टू -x, क्योंकि x इज -1 सो +1 कब बनेगा जब हम माइनस बनाएंगे. सो मोड ऑफ x इक्वल्स टू -1. सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, अगर हम आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें then this can be written as minus x, okay, plus 1 for all x is less than to 0 and ये आपका 0 ही रहेगा, x equals to 0 and x is greater than to 0. so if x is greater than to 0 then आपका mode of x है वो आपका x हो जाएगा, because suppose if x equals to 1 then आपका मोड ऑफ x जो है वो होगा मोड ऑफ 1 यानी कि 1 दैट इज इक्वल टू x. ओके, सो ये आपका होगा मोड ऑफ x जो है दैट विल बी इक्वल टू x. ओके, एंड -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन टू 0. सो ये हमने मोड जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज इफ fx इक्वल्स टू दिस वन then what are the values of a? Does limit x tends to a fx exist? कि a की क्या वैल्यू होगी कि जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करेगी. सो देखिए यहाँ पे जो लिमिट्स है, जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है 0 पे, 0 से लेस, 0 के 0 से लेस, 0 के इक्वल एंड 0 से ग्रेटर देन. सो देयर में बी a जो है हमारा, सो वैल्यूज ऑफ a मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. So case first, if a equals to 0, if a equals to 0, so देखिए a equals to 0 पे means we have to find out limit x tends to a means 0 and fx. अगर हम ये फाइंड आउट करें तो देखिए 0 पे लिमिट चेंज हो रही है, x equals to 0, x less than to 0 and x greater than to 0. so यहाँ x में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो यहां हमें लेफ्ट लिमिट भी फाइंड आउट करनी होगी और राइट लिमिट भी क्या होगी, फाइंड आउट करनी होगी फॉर x टेंड्स टू 0. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 fx and 0 minus h. okay, and that will be 0 minus h. so 0 minus h, you can say limit h tends to 0 and minus h. 0 minus h equals to minus h and minus h is less than to 0. so less than to 0 पे हमारी ये जो फंक्शन है ये यूज में होगा. so जहां भी x है वहां हम पुट करेंगे minus x. so it can be written as limit h tends to 0 और x ये हमारा देखिए ये नेगेटिव सिंबल और जो x है x की जगह हम पुट करेंगे माइनस h. ओके, एंड +1. सो माइनस माइनस प्लस h एंड पुट h इक्वल्स टू 0, देन वी गेट 0 plus 1 दैट इज 1. ओके, नाउ राइट लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 plus h, so you can say limit h tends to 0, 0 plus h and h is greater than to 0, h is greater than to 0, so 0 से बड़ा हमें ये यूज में लेना है. सो यहां जहां x है वहां हमें क्या पुट करना है, h. सो लिमिट h tends to 0 x की जगह हम पुट कर देंगे h. ओके, एंड -1, h and -1. so here we get -1. this value is -1. now लेफ्ट लिमिट देखिए, लेफ्ट लिमिट हमारी है 1
एंड राइट लिमिट है हमारी -1 सिंस, और यू कैन से सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स. ओके, सो वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स यहां पे अगर ए एक्स इक्वल्स टू जो हमारा x है, जो हमारा a है, x टेंड्स टू a और a मीन्स 0, अगर हमारा 0 है, वैल्यू ऑफ a इज 0, देन हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस. नाउ केस सेकंड दैट इज इफ a इज ग्रेटर देन टू 0. अगर a हमारा पॉजिटिव है, सो देखिए a पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन टू 0, सो a पॉजिटिव के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स मीन्स a हमारा क्या है, पॉजिटिव है. सो यू कैन से x की जगह हमें क्या पुट करना है, a, सो एफ a एंड एफ a हमारा क्या है, पॉजिटिव. सो a पॉजिटिव हमारा मीन्स x हमारा पॉजिटिव कहां है, यहां है दिस फंक्शन के लिए. सो हम ये वाला फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे. सो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x. देखिए a इज ग्रेटर देन टू 0 मीन्स जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन टू 0. सो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, देन वी फाइंड a -1 एंड a इज ग्रेटर देन टू 0. सो इफ a इज 1, देखिए इफ a इज 1 तब तो हमारा वैल्यू होगा 0. सो यू कैन से इफ a इज 1, देखिए ग्रेटर देन टू 0, 0 से बड़ा होना है, सो 1 हो सकता है. इफ a इज 1 देन this becomes 0 if a equals to 1. okay, और अगर if a is greater than to 1 then positive value. okay, if a is greater than 1 है, then ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. एंड नेगेटिव वैल्यू इफ जो a है, सो 0 से तो a क्या है, बड़ा है, बिकॉज a is greater than to 0 and less than to 1. okay, so हमारी ये नेगेटिव वैल्यू होगी. and all these three values are defined. so हमारा फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर a is greater than to 0. अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट, इसी में थर्ड केस बनेगा, दैट इज a is less than to 0 पे. okay, so केस थर्ड that is if a is less than to 0. a हमारा क्या है, नेगेटिव. सो नेगेटिव है, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स. सो नेगेटिव के लिए देखिए x इज लेस देन टू 0, बिकॉज हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a पुट करनी है. हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a, एंड a is less than to 0. नेगेटिव है, सॉरी, a is less than to 0 means x is less than to 0. सो ये फंक्शन यूज में आएगा. सो यू कैन से -a + 1, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a. सो -a + 1. अब देखिए दिस इज ऑलवेज, अगर ये जो a है, ठीक है, ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, डिफाइंड होगी. ओके, बिकॉज a इज नेगेटिव. सो देखिए यहां पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सो ये नेगेटिव और वैल्यू a इज ऑलरेडी नेगेटिव, सो नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना. सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 1. ये वैल्यू हमेशा देखिए, बिकॉज 0 तो होगा नहीं, 0 का केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, a = 0. सो अगर a = 0 होता, देन ये क्या होता, 1 होता. बट a = 0 हमने यहां डिस्कस कर लिया है, a इज लेस देन टू 1, 0 है. सो सपोज ये आपका 0.001 हुआ a, और एक नेगेटिव ये है आपके पास. सो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना. सो दिस वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन टू 1. सो यू कैन से इसके लिए भी हमारे पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होगी. सो फाइनली वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट for all values of a
एक्सेप्ट a is equals to 0, यानी a की वैल्यू 0 है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनके अलावा अगर a इज ग्रेटर देन टू 0 एंड a इज लेस देन टू 0 तो आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। सो यू कैन से फॉर ऑल लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं है, उन सब के लिए हमारी जो लिमिट है वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 is, if the function fx satisfies this one, evaluate this one, यानी ये जो हमारा फंक्शन जो है ना सेटिस्फाई है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, इट इज गिवन दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, सो evaluate लिमिट x टेंड्स टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 31, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। सो हमें क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है। सो यहां 1 पुट करेंगे x की जगह, देन वी गेट f1 माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखिए अब जो कंसेप्ट है वो समझने का है कि हमारी जो न्यूमिनेटर ये तो हमारा होगा 0। ओके, 1 सॉरी जो डेनोमिनेटर है, यहां हमारे पास जो डेनोमिनेटर है 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज डेनोमिनेटर। सो डेनोमिनेटर तो हमारा होगा 0, बट अगर हमारा न्यूमिनेटर 0 नहीं है, मींस f1 नॉट इक्वल्स टू 2। ओके, सो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, सपोज कुछ भी, एंड वैल्यू आने से ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसकी लिमिट क्या है, पाई। लिमिट इज पाई, मींस एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर है, डेनोमिनेटर तो हमारा 0 होगा 100%, इसका मतलब न्यूमिनेटर जो है हमारा 0 आएगा, बिकॉज 0/0 की फॉर्म हो तो हम आगे लिमिट को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो उस कंडीशन में ये जो है हमारा क्या बनेगा, f1 क्या बनेगा 2, क्योंकि उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 0, मींस f1 की वैल्यू क्या होगी 2। सो देखिए क्या होगा, यू कैन से दैट सो दिस इज f1 माइनस 2 अपॉन 0। अब हम यहां लिखेंगे सिंस इफ f1 माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, then limit x टेंड्स टू 1 fx, ये जो है हमारा k मींस कोई ना 0 नहीं है, मींस कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो ये हमारा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू पाई। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और क्या है, पाई। बट अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इन दैट कंडीशन ये जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी भी मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज गिवन दैट लिमिट एग्जिस्ट। हेंस f1 minus 2 equals to 0. So you can say f1 equals to 2. f1 equals to 2. So if the function fx satisfy, then evaluate limit x tends to a, x tends to 1 fx. इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। So you can say fx, ये जो वैल्यू है, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जो हमारा f1 है, f1 इज 2। सो यू कैन से हेंस
जो आपका एफ एक्स है वो क्या होगा 2 के इक्वल होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस क्वेश्चन नंबर 32 इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज if f(x) equals to this one, for what integers m and n does both this and this exist? So देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x), सबसे पहले हमें 0 पे फाइंड आउट करना है एंड 0 पे हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए फॉर x लेस देन टू 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन टू 0। ओके, सो हमें 0 पे लेफ्ट एंड राइट बोथ लिमिट्स कैलकुलेट करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर this is question number 32, limit x tends to 0 minus fx and that यहां लिख लेते हैं 32, limit x tends to 0 minus fx, बिकॉज हमें x tends to 0 कैलकुलेट करनी है और x इक्वल्स टू 0 पे देखिए वैल्यू चेंज होगी, x लेस देन टू 0 एंड x ग्रेटर देन टू 0। सो हमें यहां बोथ लिमिट्स, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, बोथ लिमिट्स वी हैव टू कैलकुलेट। दोनों लिमिट्स को हमें कैलकुलेट करना होगा। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h मींस यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू लिमिट, देखिए 0 माइनस एंड h, सो h टेंस टू 0 f माइनस h एंड माइनस h लेस देन टू 0। ओके, सो ये हमारी लेस देन टू 0 के लिए ये वैल्यू होगी। सो ये फंक्शन अप्लाई होगा। यहां हम x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस h। सो लिमिट h टेंस टू 0 एंड f माइनस h, x की जगह हम पुट करेंगे माइनस h, ओके, एंड स्क्वायर प्लस n। सो पुट दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड mh स्क्वायर प्लस n, पुट h इक्वल्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे हियर, देन वी गेट n। ओके, नाउ राइट लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h की वैल्यू होगी fh। ओके, सो लिमिट h tends to 0 and this is equals to plus h। so आपका 0 plus h means x is greater than to, देखिए h is greater than to 0, so h is greater than to 0, so x आपका greater than to 0 यहां है, so ये फंक्शन यूज में होगा। so n और x की जगह हम पुट करेंगे h plus m, now put h equals to 0, so we get n। okay, since you can say for what integers m and n both exist, so since limit x tends to 0 fx exist, अगर ये exist करती है इसका मतलब hence limit x tends to 0 minus fx equals to limit x tends to 0 plus fx। okay, and this is n एंड दिस इज n। सो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बनी कि n इक्वल्स टू m, वो हमारी यहां से निकल के आई है। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। x टेंस टू 1, सो x टेंस टू 1 पे देखिए 1 पे भी वैल्यू चेंज हो रही है, फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड फॉर x इज ग्रेटर देन टू 1। दो वैल्यूज, दो फंक्शंस हमें यहां पे यूज में लेने हैं फॉर x इक्वल्स टू 1। सो यहां भी हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बोथ लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे फॉर x tends to 1। so now limit x tends to 1 minus fx, okay, this is equals to limit h tends to 0 and 1 minus h। so 1 minus h, 1 में से h माइनस करें मींस लेस देन टू 1, और लेस देन टू 1 पे x इज लेस देन टू 1 पे हम ये फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पे हम पुट करेंगे n, x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस h एंड प्लस m। ओके, लिमिट h टेंस टू 0 एंड
x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एच प्लस एम। ओके, सो यहां पे हम h की वैल्यू 0 पुट करें, पुट h इक्वल्स टू 0। जब h 0 पुट करेंगे सो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1, सो वी गेट n into 1 minus 0 plus m. So you can say n plus m. Okay. And limit x tends to 1 plus fx, and that will be equal to limit x tends to 0, 1 plus h, 1 plus h and 1 plus h। 1 में हमें कुछ ऐड करना मीन्स ग्रेटर देन टू 1। सो ग्रेटर देन टू 1 के लिए हम ये फंक्शन यूज में लेंगे। सो यहां हम लिखेंगे equals to limit h tends to 0, okay, and x की जगह हम पुट करेंगे 1 plus h cube and plus m, and if we simplify put h equals to 0, जब हम यहां पे h equals to 0 पुट करेंगे, okay, then we get h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, then we get n plus m। so देखिए यहां n प्लस m एंड n प्लस m बोथ आर सेम। सो n और m की जो वैल्यू है वो कोई स्पेसिफिक हमारे पास कंडीशन नहीं आई है, मींस n और m इक्वल होंगे तब तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और यहां जो है कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए n एंड m की, सो बोथ सभी वैल्यूज के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एंड m these functions exist, or you can say these limits exist। so यहां पे हमारे पास दोनों से जो है n plus m and n plus m आया है, so you can say for all values of n and m limit x tends to 0। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 fx ये तो एग्जिस्ट करेगी व्हेन n इक्वल्स टू m। सो यू कैन से लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट फॉर all values of n and m such that n इक्वल्स टू m। n और m दोनों की वैल्यू सेम होगी, अब वो चाहे कुछ भी हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 0 हो, कुछ भी हो। सो ये जो फंक्शंस है, ये जो वैल्यू है, ये क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। ओके, एंड नाउ लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड m। यहां देखिए यहां हमें कोई बाउंडेशन, इनको हम सोल्व करें सो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, हमारे पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा ओके कि n और m की वैल्यू क्या होगी, बट x टेंस टू 0 के लिए हमें n और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो ये हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 थी वो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।